بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سب جانیں گے حج کے بارے میں کہ حج کسے کہتے ہیں، حج کیا ہے اور حج کتنے قسم کا ہوتا ہے، کن لوگوں پر حج فرض ہے، حج میں کتنی چیزیں فرض ہیں جن کے چھوٹ جانے سے آپ کا حج نہیں ہو سکتا، اور کتنی چیزیں واجب ہیں جن کے چھوٹ جانے سے حج ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عمرہ کا بھی طریقہ جانیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میقات اور حرم شریف کسے کہتے ہیں یہ بھی جانیں گے۔ سب کچھ جانیں گے اسی ویڈیو میں۔ آپ کو حج کے بارے میں دوسری کوئی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ، اس لیے آپ سب اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہم ایک ہی ویڈیو میں ان ساری باتوں کو شارٹ کٹ میں بہترین طریقے سے جانیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ حج یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر اس انسان پر جس کے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ وہ حج کر سکتا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کے لیے اس گھر کا یعنی بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے جو وہاں تک جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ لوگوں پر حج فرض ہے، اور فرض ہونے کے لیے استطاعت اور وہاں تک کے جانے کی طاقت شرط ہے۔ استطاعت کیا ہے؟ اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو زیادہ راہ اور سواری سے بیان فرمایا ہے، یعنی کھانے پینے کا انتظام اس طرح ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ جا کر گھر واپس آنے تک کے لیے وہ کافی ہو، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ واپسی تک بال بچوں کے خرچے کے علاوہ ہونا چاہیے، اور راستے میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ حج اس انسان پر فرض ہے جس کے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ وہ خانہ کعبہ جا کر گھر واپس آ سکے کسی سے قرض لیے بغیر، اور راستہ بھی خطرے سے خالی ہو۔ اب حج کتنا قیمتی اور امپورٹنٹ عبادت ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں 5 پلرز ہیں، 5 ستون ہیں، 5 کھمبے ہیں، اور حج ان 5 پلرز میں سے ایک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، بیت اللہ شریف کا حج کرنا، اور نمبر 5، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ حج ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے، اس کو بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو حج کرنے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی موت یہودیت پر ہو یا نصرانیت پر ہو سکتا ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ نصرانی ہو کر مرے۔ ایک مسلمان کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی دولت اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ اس کا ایمان ہے۔ تو اگر یہ ایمان موت کے وقت ہم سے چھین لیا جائے تو ہماری ہلاکت و بربادی کے لیے اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے۔ حج کیا ہے؟ حج کی نیت کے بعد احرام، جو حاجیوں کا ایک خاص لباس اور پوشاک ہے، باندھ کر حج کے فرائض اور واجبات کو ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ پورے سال میں حج کے صرف 5 دن ہیں، 8ویں ذی الحجہ سے 12ویں ذی الحجہ تک۔ باقی دنوں میں حج ادا نہیں ہو سکتا۔ انہی 5 دنوں میں حج کے فرائض، واجبات اور سنتوں کی ادائیگی ہوتی ہے۔ مدینہ شریف کی حاضری ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن یہ حج کا حصہ نہیں ہے۔ تو اب یہ بھی جان لیں کہ حج کے فرائض کیا ہیں، یعنی حج میں وہ کون سی چیزیں اتنی ضروری ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہمارا حج نہیں ہو سکتا۔ حج میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، احرام۔ نمبر 2، وقوف عرفہ، یعنی 9ویں ذی الحجہ کے دن سورج ڈھلنے سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے تک میدان عرفات میں ٹھہرنا۔
नंबर 3, तवाफ़ ज़ियारत यानी आखिरी बार खाना काबा का तवाफ़ करना। और हज में 6 चीज़ें वाजिब हैं, यानी इनमें से अगर कोई एक चीज़ छूट गई तो हज हो जाएगा, लेकिन कुर्बानी करना वाजिब होगा। और वो ये है, नंबर 1, मुज़दलिफ़ा में मैदान अराफात में ठहरने के बाद ठहरना। नंबर 2, रमी जिमार यानी कंकरियाँ मारना। नंबर 3, सर के बाल मुड़वाना या सर के बाल कतरवाना। नंबर 4, सफ़ा मरवा जो 2 पहाड़ी हैं इनके बीच दौड़ लगाना। नंबर 6, हज किरान और हज तमत्तु करने वाले के लिए कुर्बानी शुक्राने के तौर पर करना। हज 3 तरह का होता है। नंबर 1, हज इफ़राद। हज इफ़राद ये है कि इंसान सिर्फ़ और सिर्फ हज करे, उम्रा ना करे। इसमें सिला हुआ कपड़ा उतार कर मीक़ात से ihराम बांधे, फिर 2 रकात नफल नमाज पढ़े और इसके बाद यूँ कहे, इलाही मैं हज का इरादा करता हूँ, तू इसे मेरे लिए आसान कर दे और मेरी तरफ से इसे कबूल फरमा। मैंने ख़ास अल्लाह ताला के लिए हज की नीयत की। दूसरा है हज तमत्तु। हज तमत्तु ये है कि उम्रा भी किया जाए और हज भी किया जाए। सबसे पहले इंसान जब हज के लिए चले तो अपने घर ही से उम्रा की नीयत करके चले और खाना काबा पहुंचकर उम्रा अदा कर ले और ihराम खोल दे। फिर जब 8वीं ज़िलहिज्जा आ जाए तो मक्का मुकर्रमा के लिए जो मीक़ात है वहाँ पर चला जाए और वहाँ से हज का ihराम बांधे। और हज का ihराम बांधने के बाद वो 2 रकात नमाज नफल पढ़े और ये कहे कि मौला मेरे लिए तू इसे आसान कर दे, मेरी तरफ से कबूल फरमा, मैंने हज की नीयत की। तीसरा है हज किरान। हज किरान उस हज को कहते हैं जिसमें इंसान उम्रा और हज दोनों का ihराम एक साथ बांधे, यानी जब वो घर से चले तो वहीं पर वो हज और उम्रा की नीयत से ihराम बांध ले और जब तक वो हज अदा ना करे तब तक वो ihराम ना खोले। ये बात भी याद रखें कि मीक़ात किसे कहते हैं। मीक़ात उस जगह को कहते हैं जहाँ से मक्का मुकर्रमा जाने वाले को ihराम बांधे बगैर आगे जाना जायज़ नहीं, अगरचे वो बिजनेस या किसी और मकसद से जाता हो। मीक़ात कुल 5 हैं। हर जगह के लिए मीक़ात अलग अलग है। मदीना तैयबा की मीक़ात ज़ुल्हुलैफ़ा है और हम हिंदुस्तानियों के लिए मीक़ात यलमलम पहाड़ है। जब लोग कश्तियों के ज़रिए हज या उम्रा के लिए मक्का मुकरमा जाते थे तो यलमलम पहाड़ आने से पहले वो ihराम बांध लेते थे, लेकिन हम लोग हवाई जहाज़ के ज़रिए मक्का का सफ़र करते हैं, इसलिए हम जब एयरपोर्ट में पहुंचते हैं तो वहीं पर ihराम बांध लेते हैं, क्योंकि हवाई जहाज़ में मीक़ात आने से पहले ihराम बांधना मुश्किल है। ये मसला भी याद रखें कि अगर हम हिंदुस्तानियों में से कोई हज या उम्रा के लिए जा रहा है और मक्का मुकरमा जाने से पहले मदीना जा रहा है तो अब वो मक्का जाने के लिए ज़ुल्हुलैफ़ा में ihराम बांधेगा। और ये मसला भी याद रखें कि जब कोई ihराम बांधकर हरम शरीफ के अंदर दाखिल हो गया तो अब वो उम्रा करके ihराम खोल दे, तो जब तक वो हरम के अंदर है अब उसे ihराम की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जो ही वो हरम शरीफ से बाहर निकलेगा तो अब जब भी वो हरम के अंदर दाखिल होगा तो उसे ihराम बांधना होगा और वहाँ से बांधना होगा जहाँ मक्का वालों की मीक़ात है। हरम से मुराद खाना काबा के इर्द गिर्द कई किलोमीटर फैला हुआ इलाका है, जहाँ बाकायदा निशान लगा दिया गया है कि ये हरम शरीफ का हिस्सा है। जो लोग हज और उम्रा करने जाते हैं उन्हें अक्सर उसकी पहचान हो जाती है। ये बात भी याद रखें कि हम हिंदुस्तानी लोग जब हज की नीयत से निकलते हैं तो हम में से अक्सर लोग हज तमत्तु करते हैं, यानी सबसे पहले वो उम्रा करते हैं, फिर उम्रा करने के बाद जब हज का दिन आता है तो फिर वो हज का ihराम बांधकर हज करता है। तो इसका तरीक़ा ये है कि मीक़ात से उम्रा का ihराम बांधकर उम्रा की नीयत करे। दूसरे में जब वो हरम शरीफ यानी खाना काबा में पहुंच जाए तो खाना काबा का तवाफ़ करे, उसका चक्कर लगाए, फिर मकाम इब्राहिम में या उसके आसपास जहाँ कहीं भी जगह मिले
वहाँ 2 रकात वाजिब नमाज पढ़े, फिर सफ़ा मरवा के बीच दौड़ लगाए। उसके बाद वो सर के बाल को मुड़वाए या कतरवाए। उम्रा मुकम्मल हो गया। अब जब 8 ज़िलहिज्जा आ जाए तो नंबर 1, हरम शरीफ से बाहर उस जगह तशरीफ़ ले जाए जहाँ पर मक्का वालों के लिए मीक़ात है, जहाँ मक्का वाले एहराम बांधते हैं, यानी मस्जिद आयशा। वहाँ हज के लिए एहराम बांधे और हज की नीयत करे। उसके बाद वो मिना के लिए रवाना हो जाए। नंबर 2, 8 ज़िलहिज्जा का दिन मिना में गुजारे। नंबर 3, 9 ज़िलहिज्जा मैदान अरफात में ठहरा रहे। नंबर 4, 9 ज़िलहिज्जा सूरज डूबने के बाद मगरिब की नमाज पढ़े बगैर मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाए। यहाँ ये बात याद रखें कि मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की नमाज को एक साथ पढ़ना है ज़ोहर के वक्त में, और मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज एक साथ पढ़ना है इशा के वक्त में। नंबर 5, मुज़दलिफ़ा पहुंचकर वहीं रात गुजारे और सुबह उजाला होने के बाद मिना के लिए रवाना हो जाए। नंबर 6, 10 ज़िलहिज्जा बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारे। नंबर 7, 10 ज़िलहिज्जा हज तमत्तु करने वाला कुर्बानी करे। यहाँ ये बात याद रखें कि हज इफ़राद करने वाला भी कुर्बानी कर सकता है, लेकिन ये उस पर वाजिब नहीं है, लेकिन हज तमत्तु करने वाले पर कुर्बानी वाजिब है। नंबर 8, सर के बाल को मुड़ाए या कतरवाए। नंबर 9, एहराम से निकल जाए और हज का तवाफ़ करे। नंबर 10, मकाम इब्राहिम में जाकर या उसके आसपास जहाँ कहीं भी जगह मिले 2 रकात नमाज पढ़े, यह वाजिब है। नंबर 11, सफ़ा मरवा के बीच हज के तवाफ़ के लिए दौड़ लगाए। नंबर 12, मिना जाकर 11-12 ज़िलहिज्जा को ज़वाल के बाद तरतीब से तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियाँ मारे। नंबर 13, वापसी से पहले खाना काबा का तवाफ़ करे। ये तवाफ़ ज़ियारत कहलाता है और ये हर हाजी पर फ़र्ज है। हज मुकम्मल हो गया। तो मेरे दोस्तों, ये थी हज के ऊपर हमारी मुकम्मल वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अगर एक बार में वीडियो आपको समझ में ना आए तो आप 2 बार देख लें, 3 बार देख लें। इतनी बार देखने से आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो हजरात भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें।